Hello everyone, welcome back you all in our online video classes. Dear students of class 10th, as you know we are studying chapter number 5, arithmetic progressions, okay, and we are doing the questions of exercise 5.2. We have already done first 3 questions of this exercise and today we will start from question number 4. So let us see what is question number 4. Dear students, question number 4 is given. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78. Okay. So, dear students, this question is very interesting. As you know, we have to find which term. Question में पूछा गया है which term means we have to find n. We have to find here n. And AP is given, right? And we have given the term also. Okay. So let us start this question. Given AP is, first of all we will write the AP 3, 8, 13 and 18. This is our given AP. Now here first term is 3. First term is 3. As you know we represent first term by A. First term is 3 and common difference D is we have to find by subtracting the next term minus previous term. So we can do it here as A2 minus A1, 8 minus 3 and this will be 5. Okay. So our first term is 3 and common difference is 5. Common difference is 5. This is our common difference 5. Now we have given a term 78 and we have to find which term is 78. Now an is equal to 78. This one is given, right? What is an? You know, general term. And what is the formula for general term? It is a plus n minus 1 into d is equal to 78, because an is equal to a plus n minus 1 into d, where you know a is first term, n is the required number of term and d is common difference. Okay. So now we will put the values of a and d here to find the value of n. So what is a? A is 3, so 3 plus n minus 1 will be as it is into d. What is d? It is 5 is equal to 78. Okay. So here it will be, we will shift now 3 from left hand side to right hand side and we will be here n minus 1 into 5 is equal to 78 minus 3. 78 minus 3 and now n minus 1 and 5 are multiplying, so we can keep here only n minus 1 and 5 can be going upon of the right hand side. So 78 minus 3 is now 75 and 5 will be in divide, so we can divide 75 by 5. 5 15 75. Okay. Finally n minus 1 is equal to 15. N minus 1 is equal to 15 and hence the value of n will be 16, because we will shift minus 1 to the right side and it will become there plus 1 and 15 plus 1 is 16. So 78 हमारा कौन से नंबर का टर्म था? 16th नंबर का टर्म था. Okay. So this is the required answer. Okay. Now next question is again very simple.
Find the number of terms in each of the following APs. Number of terms means in fifth question you have to find the number of terms, and you have given last term here, and you know last term we represent by the same thing. Sometime we represent an is equal to L. Okay, so formula for both will be same, and in question number 5 part 1 and part 2 we have given here last term. So जहां पर हमने यहाँ पर an दिया है वहां पर आपने लास्ट टर्म का वैल्यू देना है, और इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू. ओके, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी. हमें क्या चेक करना है कि क्या -150 इज अ टर्म ऑफ एपी. क्वेश्चन नंबर 6. Check whether -150 is a term of AP. AP is given 11,852. 11,852 and so we have to check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5 and 2. तो यहां पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में भी. और हमें कैसे मालूम होगा कि क्या -150 इस गिवन AP का एक टर्म है. अगर हमारे पास n की वैल्यू एक होल नंबर, एग्जैक्ट होल नंबर आती है हमारे पास, राइट, तो हम कह सकते हैं कि -150 इस AP का एक टर्म है. राइट, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, राइट, 1 2 3 4. राइट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AP हमारे पास है और टर्म भी हमारे पास गिवन है. सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 we will do its solution. Here given AP is 11, 8, 5, 2 and so on. And now first term is here, very simple, 11 is our first term. Okay, and common difference is here 8 minus 11, that is equal to -3, because माइनस का 11 बड़ा तो -3 आ गया हमारे पास. दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया. नाउ टर्म, द गिवन टर्म इज -150. Now we will apply the formula for an. It implies a plus n minus 1 into d is equal to -150. What is a? Is 11 plus n minus 1 will be as it is n minus 1, and what is d? It is -3. So we will put in bracket because it is negative term, and n minus 1 and -3 are multiplying, right? It will equal to -150. Now we will replace this 11 from right hand side to we will shift this 11 from left hand side to right hand side. Okay, and it will be here -150, and यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 11, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 11. Okay, so it will be here n minus 1 into again n minus 1 will be here, and -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है. ये यहाँ पर राइट हैंड साइड कहाँ जाएगा, अपॉन में. इट इज इक्वल टू, वी विल सम ऑफ दिस, इट विल -161 divided by -3. Okay, and now we can
take from here n minus 1 is equal to, we can cancel minus by minus 3, we can cancel it, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 1 left, 3 3s are 9, 53 point something will be, right? 53 point 3 3s are 9 and we have here 11, so it will become 20, 3 6s are 3 6 are 18 here, again 2, 3 6 are 18 and so on. So it will be 53.66 and we can shift this minus 1 to this side plus 1. So n is equal to 54.66, which is not a whole number. Since which is not a whole number, so we will write hence minus 150 is not a term of given A. Okay. Dear students, next question is question number 7, which is given here. Find the 31st term of the AP. We have to find the 31st term of the AP, whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. This question is very simple and you can solve 7th question with the help of question number 8. We will discuss here question number 8, and question number 8 we have given an AP consists of 50 terms. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. Third term is 12 and the last term is 106. Last term is 106. वहां पर हमसे पूछा गया है 31st टर्म फाइंड आउट करना है और इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है 29th टर्म. इस वाले क्वेश्चन में हमें टर्म फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन. सो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हमें टर्म फाइंड आउट करना है और हमारे पास दो टर्म्स गिवन होती है, हमें वहां पर ए और डी को एज्यूम करना पड़ता है. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम करना पड़ता है. तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. डी बी द common difference, D be the common difference of A. Is that clear? Okay, हमने A को मान लिया अपना फर्स्ट टर्म और D को मान लिया हमने अपना कॉमन डिफरेंस. नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है. A3 हमारे पास कितना दिया है 12 और क्या दिया है हमारे पास लास्ट टर्म. क्वेश्चन में क्लियरली कहा है हमारे पास कि कितने टर्म्स है टोटल, उसमें 50 टर्म्स. तो यहां पर आपने दिमाग लगाना है कि लास्ट टर्म दिया है 106, तो कितने टर्म्स टोटल है उसमें 50 टर्म्स. तो हमारे पास लास्ट टर्म हो जाएगा एंड वो हो जाएगा इक्वल टू A50. और ये कितना दिया है हमारे पास A50 106. ओके, नाउ ए थर्ड हमारे पास कितना दिया है 12. ए थर्ड हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. ये तो फॉर्मूला है हमारे पास. ए एन हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो जैसे हमसे यहाँ पर पूछा गया a3 तो कितना आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. ये अंडरस्टूड है, हम बार बार लिखेंगे इसको. ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जितना टर्म पूछा गया होता है डी के साथ उससे एक कम क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि n-1 जो दिया है यहाँ पर. तो a प्लस कितना आ जाएगा 2d. ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हम बिल्कुल शॉर्ट करेंगे इसको. तो a3 कितना हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. सिमिलरली यहाँ a50 कितना हो जाएगा a प्लस 49d. 50 में से एक कम 49 इंटू d इज इक्वल टू 106. और इसको हम मान लेते हैं, ये रफ वर्क है, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट
इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें 29th टर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। सो इक्वेशन सेकंड हमारे पास कितना है, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। माइनस करना है तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। क्लास 10th का हमारा कौन सा मेथड पढ़ा था अभी हमने, एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर नंबर 3 में। ओके, तो यहां पर हम यूज करेंगे, सबके साइन चेंज हो गए, a कैंसिल हो गया हमारे पास, 49d माइनस 2d कितना हो जाएगा, 47d इज इक्वल टू 106 से 12 को माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 94। और फाइनली d विल बी इक्वल टू 94 बाई 47 एंड 47 2 जा 94। सो द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम हियर इज 2। इस प्रकार से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है कितनी आ गई, 2। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैसे आ जाएगी, हम यहां पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2 इंटू व्हाट इज d, 2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 12। ओके, a प्लस 4 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 12। फाइनली हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 4 8। हमारे पास a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 8। अब क्वेश्चन आसान हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म। ओके, सो नाउ a29 will be equal to a plus 28 into d, a plus 28 into d, and it is equal to, we will put here the values of a and d only to get the 29th term of the AP. So what is a? It is 8 plus 28 into what is d? It is 2. So 8 plus कितना हो गया हमारे पास, 28 2 जा 56 and 56 plus 8 is equal to 64 and 64 is the required 29th term. It's the required answer. Okay, तो देखा आपने क्वेश्चन कितना आसान था, एपी दिया था 50 टर्म्स थे टोटल उसमें, ठीक है, थर्ड टर्म गिवन था और लास्ट टर्म गिवन था, 2 टर्म गिवन थे, तो हमने कोई भी रिक्वायर्ड टर्म फाइंड आउट कर लिया। आपने इस क्वेश्चन में सीख लिया होगा कि कैसे हमें अननोन टर्म को फाइंड आउट करना होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया है, जिस हिसाब से किया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपने उसी हिसाब से करना है। क्वेश्चन 9 गिवन क्या है हमारे पास, 9 क्वेश्चन इज इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, सो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो यहाँ पर आपके पास टर्म गिवन है, तो आपने क्या करना है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की हेल्प से आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फिर आपके पास क्या है, ए एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0। क्वेश्चन जिस हिसाब से हमने 4, 5 और 6 किया था, वहां पर भी हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पर भी हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टर्म गिवन है 0। Okay, so you can do 9th question by yourself. Now we will discuss about question number 10. So what is question number 10? The 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7. क्वेश्चन में क्या दिया है, तो जो 17th टर्म है उस AP का वो क्या है, एक्सीड करता है 10th टर्म by 7, मतलब 10th टर्म से क्या है, 7 ज्यादा है। So we have to find the common difference. इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को भी, बिल्कुल इस तरह से, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म
and D be the common difference, and D be the common difference. यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है हमारे पास, D be the common difference. तो A हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया और D हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस. में फाइंड भी क्या करना है, D का वैल्यू. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम यहाँ से कर देंगे. क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 70th टर्म है, मींस A 70th जो है वो किसके इक्वल है, वो A 10 से 7 ज्यादा है, एक्सीड A 10 by 7. ओके, सो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास. अब A 17 क्या होगा, सिंपली यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे A प्लस 16D. कितना होगा, A प्लस 16D. और A 10 हमारे पास कितना बन जाएगा, A प्लस 9D प्लस 7. कोई मुश्किल था इसमें, बहुत आसान काम था. हमने सिर्फ A 17 और A 10 के जो वैल्यू बनती है, जो फॉर्म बनती है, उसे हमने पुट कर दिया यहाँ पर. राइट, नाउ यू कैन शिफ्ट दिस टू दिस साइड, A प्लस 9D फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. इट विल बी हियर A प्लस 16D. A यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा और D 9D यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा. 9D इज इक्वल टू प्लस का 7. ओके, प्लस A और माइनस A तो हमारे पास कैंसिल हो गए. 16D में से 9D को माइनस किया तो प्लस का 7D आ गया हमारे पास. यहाँ पर कितना है, 7. यहाँ पर भी कितना है हमारे पास, 7. तो फाइनली जो D का वैल्यू है वो कितना आएगा, 7 अपॉन 7. बहुत आसान है आपके लिए कैंसिल करना. 7 1 जा 7. सो रिक्वायर्ड जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1. हेंस जो वैल्यू है फाइंड आउट करना था यहाँ पर कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 1. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो 11th क्वेश्चन में आपके पास AP गिवन है. ओके, और इसमें कंडीशन बन जाएगी कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कि आपने कैसे सॉल्व करना है. बिल्कुल ऐसे ही होगा, A फर्स्ट टर्म, B कॉमन डिफरेंस, और इसमें जो बन जाएगा AN इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, A 54 प्लस 132. तो आपने यहाँ पर निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. स्टेटमेंट आगे बाद बन जाएगा कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. नाउ वी विल से अवर क्वेश्चन नंबर 12. 12 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. Question number 12 is 2 APs have the same common difference. 2 APs have the same common difference. 2 AP हमारे पास, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है हमारे पास. The difference between their 100 term is 100. The difference, और हमारे पास क्या दिया है, the difference between their 100, the difference between their 100 term is 100. So what is the difference between their 1000th term? So we have to find what is the difference between their 1000th term. Okay, we have given in question number 12
टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। ओके, फिर हमारे पास क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 100 दिया है। किसके बीच में, उन दो एपीज की जो 100th टर्म होगी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 100। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ओके, so let us start its solution। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, so let कैपिटल A, बिकॉज फर्स्ट टर्म दोनों एपीएस का क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी तो यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास। ओके, लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ओके, let capital A be the first term of first AP and small a be the first term of second AP। तो हमने फर्स्ट टर्म को क्या लिया, डिफरेंट लिया है। एंड ऑल्सो let D be the common difference of both, D be the same common difference, D be the same common difference, let D be the same common difference of both the APs, right। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म AP सेकंड का, और D हमारे पास क्या था, जो हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस था दोनों एपीज का, उन्हें क्या ले लिया, D। तो हमें D एक ही लेना है, क्योंकि दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू वो क्या रहेगी, सेम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मींस अगर हम बात करें यहाँ पर, हम टर्म को A100 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर A100 माइनस A100, जो उनका 100th टर्म दोनों एपीज का रहेगा, उसका डिफरेंस कितना दिया है, 100। कितना दिया डिफरेंस, 100। तो A100 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 90 माइनस दिया यहाँ पर, ब्रैकेट लगाएंगे, और A100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ओके, सो अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, A प्लस 99D, और ये माइनस का A बन जाएगा, और ये माइनस का 99D बन जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 100 प्लस के 99D से माइनस का 99D तो कैंसिल हो गया हमारे पास। नाउ A माइनस A, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास एक फॉर्म बनती है, इसको हम मान लेते हैं 1। ओके, नाउ हमें फाइंड तो क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ओके, नाउ A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, A1000 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ करते हैं इज इक्वल टू A1000 का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल A प्लस 1000 में से एक माइनस करो, n-1 होता है ना, तो यहाँ पर आ गया 999D माइनस A1000, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, स्मॉल a प्लस 999D। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, A प्लस 999D माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे, माइनस का A और माइनस का 999D। जैसे यहाँ पर कैंसिल हुआ था वैसे ही प्लस के 999D से माइनस के 999D क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, A माइनस A। ओके, बट A माइनस A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 100। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी इट इज इक्वल टू 100 यूजिंग 1। हमने 1 का यूज किया यहाँ पर, और A माइनस A का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनके जो 1000 टर्म का डिफरेंस था दोनों एपीज का, वो भी कितना है, 100, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस लेक्चर में बात की क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए उसे आपने खुद सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनको आपने अच्छे से समझना है. ओके, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनीवेयर यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. दैट्स ऑल.